Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata We'll start. आप लोग सिस्टमैटिकली श्रीमद् भागवतम को रीड कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. 17th चैप्टर पे हैं. आज हम करेंगे चर्चा 117:4 पे. तो मैं श्लोका और ट्रांसलेशन प्रॉपर क्विकली पढ़ देती हूँ एंड देन उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. पप्रचारथम् आरूढः कार्तस्वरपरिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Maharaj Parikshit, well equipped with arrows and bow and seated on a gold embossed chariot, spoke to him, the Shudra, with a deep voice sounding like thunder. Purport by Srila Prabhupada. An administrative head or king like Maharaj Parikshit, with full majestic authority, well equipped with weapons to chastise miscreants, can challenge the agents of the age of Kali. Then only will it be possible to counteract the degraded age. And in the absence of such strong executive heads, there is always disruption of tranquility. The elected show bottle executive head, as representative of a degraded public, cannot be equal with a strong king like Maharaj Parikshit. The dress or style of royal order does not count. It's one's actions which are counted. 117.5. Kastvam macharane loke baladhamsya abalan bali naradevo siveshena natavat karmana dvijaha. Translation by Srila Prabhupada. Oh, who are you? You appear to be strong and yet you dare kill, within my protection, those who are helpless. By your dress, you pose yourself to be a godly man, king, but by your deeds, you are opposing the principles of the twice-born Kshatriyas. Purport by Srila Prabhupada. The Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas are called twice-born because for these higher classes of men, there is one birth by parental conjugation and there is another birth of cultural rejuvenation by spiritual initiation from the bona fide Acharya or spiritual master. So a Kshatriya is also twice born like a Brahman and his duty is to give protection to the helpless. The Kshatriya king is considered to be the representative of God to give protection to the helpless and chastise the miscreants. Whenever there are anomalies in this routine work by administrators, there is an incarnation of the Lord to re-establish the principles of a godly kingdom. In the age of Kali, the poor helpless animals, especially the cows, which are meant to receive all sorts of protection from the administrative heads, are killed without restriction. Thus, the administrative heads under whose noses such things happen are representatives of God in name only. Such powerful administrators are rulers of the poor citizens by dress or office, but factually they are worthless, lower class men without the cultural assets of the twice born. No one can expect justice or equality of treatment from once born, spiritually uncultured lower class men. Therefore, in the age of Kali, everyone is unhappy due to the maladministration of the state. The modern human society is not twice born by spiritual culture. Therefore, the people's government by the people who are not twice born must be a government of Kali in which everyone is unhappy. Om Jnanatimrandhasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते रत्नं श्लोके भक्ति. Hare Krishna. So thank you all for inviting me. Actually, Parikshit Maharaj is one of my favorite characters of Srimad Bhagavatam. और ये ऐसा एक कैरेक्टर है, आई थिंक हर घर में, हर डिवोटी हाउस में मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में एक बार तो हम परीक्षित महाराज के ऊपर चर्चा जरूर करते होंगे, क्योंकि
हम ऐसा देखते हैं कि ऑल्दो हम बोलते हैं कि वो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कृष्ण कृपा है, ये है वो है, बट इंटरनली एवरीवन, वेदर इज अ डिवोटी और इज अ नॉन डिवोटी, वी ऑल लिव अंडर द फियर ऑफ डेथ. व्हाई वी लिव अंडर द फियर ऑफ डेथ इज क्योंकि हमें नहीं पता, इट्स लाइक एन अननोन टेरिटरी फॉर मी. मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या है, एंड बिकॉज मुझे नहीं पता उसके बाद क्या है और हाउ, मतलब हाउ विल आई फेस इट, तो हम डरते हैं. बट परीक्षित महाराज एक ऐसा कैरेक्टर है who has totally conquered, मतलब उन्होंने अपना fear of death को, उसके ऊपर उन्होंने विजय पाली है. and it is truly inspirational. मतलब हम कई बार ये एग्जांपल देते हैं, हम प्रीचिंग में भी बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि we don't know when death will come. we are not so lucky like परीक्षित. lucky मतलब it depends how परीक्षित महाराज, अगर मुझे कोई बोले कि मुझे एक हफ्ते में जाना है, I don't know what I'll do. Probably I'll just my attachments will increase. But Parikshit Maharaj was an example of how one has to leave his body. हाँ, so यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से पहले क्या हो रहा है कि काऊ और बुल की कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिसमें जो काऊ जो है, जो गौ माता है, वो बड़ी दुखी है, वीक है, और उनको मारा जा रहा है. और फिर जो बुल आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ, व्हाई आर यू इन सच अ कंडीशन. तो वो बताती हैं कि कैसे धरती पे आसुरिक लोग जो है वो बढ़ गए हैं. और पहले कहते हैं कि पहले क्या होता था कि मेरे मेरे सरफेस पे मेरे ऊपर जो थे वो कृष्ण जी, जो भगवान कृष्ण है, वो खुद अपने पाँव से चलते थे, लेकिन अब वो भी चले गए हैं. तो अब हाउ विल आई बी प्रोटेक्टेड. और फिर देखते हैं कि जो बुल जो है, बुल को भी वो कह रहे हैं कि वो उनको बता रही है कि पहले तुम्हारी 4 टांगे होती थी, नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 लेग. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, हम इस चैप्टर के आगे जब ये चैप्टर शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एक कली डीमन है, कली की एक पर्सनैलिटी है, वो लाइक अ शूद्र, इज लाइक अ राक्षस, और वो अपने भाले से, अपने क्लब से वो दोनों को मार रहा है, और दोनों की बहुत मतलब बुरी दयनीय कंडीशन है. एक्चुअली हम देखते हैं कि बुल जो होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल. आप कभी जैसे हम वृंदावन में गौशाला में जाते हैं तो हमेशा एक बुल वहां पे बांधा हुआ होता है, और जब हम उसके सामने से निकलते हैं तो गैया से कोई ज्यादा डरता नहीं है, लेकिन बुल को हम बोलते हैं कि वो ध्यान से रहना, वो बैल है वहां पे, ऐसे करके बोलते हैं. तो बुल, और जो बुल ऑल्दो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, लेकिन उसको भी मारा जा रहा है थ्रू दिस कली राक्षस, कली डीमन. तो अब इनकी ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है, और अब नेक्स्ट एक्शन क्या होता है कि परीक्षित महाराज वहां पे आ जाते हैं, और परीक्षित महाराज जो हैं वो ये सीन जो है इसको देखते हैं. और जब परीक्षित महाराज यहाँ पे आते हैं तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, well equipped with arrows and bow and seated on a gold embossed chariot, spoke to him the Shudra with a deep voice sounding like a thunder. तो ये जो दोनों जो पर्पर्ट्स हैं, जो दोनों श्लोकास हैं, इसमें देखेंगे हम कि प्रभुपाद एम्फसाइज कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हु इज वेल इक्विप्ड विद वेपन्स टू चैलेंज द एज ऑफ कली. उसके पास, जैसे वो बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो हैं वो अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं टू चैलेंज द एजेंट्स ऑफ कली. तो प्रभुपाद का पूरे इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और पहले टाइम्स में क्या होता था, जब सतयुग में, द्वापर युग में क्या होता था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, प्राइम मिनिस्टर, राजा, ये जो होते थे, ये ब्राह्मणों की वो सलाह मशवरा करते थे, ब्राह्मण उनको चूज करते थे, उनको ट्रेन करते थे, एंड नॉट जस्ट इन ब्राह्मण विद्या बट ऑल्सो इन अस्त्र शस्त्र, उनको ट्रेन किया जाता था. और जब वो ट्रेनिंग करने के बाद, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी, उसके बाद दे वर क्वालिफाइड टू टेक अप द पोस्ट. और अगर वो कोई गलती करते थे तो उनको वार्निंग मिलती थी, और अगर वो कोई बहुत भारी भारी गलती करते थे तो उनको डिथ्रोन भी कर दिया जाता था, उनको अपना राज गद्दी जो होती है उसको छोड़ने के लिए भी बोल सकते थे. सो इट वाज सो स्ट्रॉन्ग. एंड ऑल्दो जो राजा जो था, उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, पावर था, सब कुछ था अपनी प्रजा के ऊपर, वो कुछ भी कैसे भी कर सकता था, बट ही वाज आल्सो सबसर्विएंट टू द किंगडम आल्सो एंड टू द ब्राह्मण आल्सो. तो इसीलिए हम जैसे बोलते हैं कि पहले टाइम में राम राज्य बोलते हैं. हाँ, राम राज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो किंग जो था, कि राजा राम के टाइम में तो ही वाज द लॉर्ड हिमसेल्फ, बट उसके बाद भी, या उनसे पहले भी क्या होता था कि द किंग जो होता था, ही वाज एब्सोल्युटली फॉलोइंग द ब्राह्मणिकल कल्चर. जो भी ब्राह्मणिकल कल्चर होता था उसको वो फॉलो करता था. दे वर ट्वाइस बॉर्न, जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं. ट्वाइस बॉर्न मतलब पहली बार आप पैदा होते हैं
थ्रू मटेरियल मेथड, और सेकंड टाइम क्या होता है जब आपकी स्पिरिचुअल इनिशिएशन हो जाती है, सो दैट इज ट्वाइस बॉर्न। तो उस टाइम पे बहुत इस बात पे स्ट्रेस देते थे, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी राजा बन रहा है, जो भी इलेक्ट हो रहा है, ही हैज टू बी स्पिरिचुअली वेरी वेरी क्वालिफाइड, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, राज विद्या ऑल्सो एंड ब्रह्म अस्त्र शस्त्र विद्या ऑल्सो। सो आई वाज हियरिंग अ लेक्चर, तो उन पे वहां पे क्या बता रहे थे कि एक बार महाभारत के टाइम पे जो भीष्म जो थे, वो जो कौरव और पांडव जो थे, ये छोटे बच्चे थे, तो खेलते रहते थे। तो भीष्म पितामह जो थे, उनको बड़ी चिंता होती थी इनकी कि ये क्या है, ये सिर्फ खेलते ही रहते हैं, ये सिर्फ खेलते रहते हैं और इनको कोई इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो एक बार क्या होता है, ये लोग खेल रहे थे कहीं पे, किसी वेल के आसपास खेल रहे थे, कुएं के आसपास खेल रहे थे, तो इनकी जो गेंद जो होती है वो कुएं के अंदर चली जाती है। कुएं के अंदर चली जाती है, तो ये सब देख रहे होते हैं हम गेंद को कैसे निकालें, गेंद को कैसे निकालें। तो क्या होता है, वहां से एक ब्राह्मण निकलते हैं और ब्राह्मण उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उनको बोलते हैं हमारी गेंद चली गई पानी में। तो ब्राह्मण उनको बोलते हैं तुम कैसे क्षत्रिय हो कि तुम्हारी गेंद पानी में चली गई और तुम सब देख रहे हो, तुम्हें उसको गेंद को निकालना नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअली मैंने एक लेक्चर में सुना है कि वो घास का तिनका डालते हैं, दर्भ डालते हैं, लेकिन आई थिंक हमने महाभारत में देखा है कि वो बाणों से उस गेंद को शूट करते हैं। सो जो भी है दोनों में से, तो लेट्स से वो दर्भ था, तो वो एक घास का तिनका जो है वो उस कुएं पे डालते हैं और वो इतना परफेक्टली डालते हैं कि वो उस गेंद के ऊपर चिपक जाता है। एक और तिनका, एक और तिनका, एक और तिनका करके वो पूरा नेटवर्क बन जाता है और वो ऊपर तक जो है वो घास आ जाती है और उसको वो बाहर निकाल देते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण यहाँ पे आए थे, हमारी गेंद अटक गई थी और हमने वो गेंद जो है वो निकाल ली बाहर, उसमें ब्राह्मण ने निकाल ली। तो भीष्म पितामह जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, इस द्रोणाचार्य। और फिर वो द्रोणाचार्य के पास मैसेज भेजते हैं कि आप ही वो परफेक्टली क्वालिफाइड जो हमारे बच्चों को ट्रेन कर सकते हो, तो आप इनको प्लीज इनको अपने शेल्टर में लीजिए और उनको सब विद्या दीजिए, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे ही वाज अ ब्राह्मण आल्सो एंड ही वाज अ क्षत्रिय आल्सो। तो वो चाहते थे कि उनको पूरी कंप्लीट एजुकेशन मिले, तो उनको वहां पे भेजा गया। सो ऐसा नहीं है कि जो ये जो एजुकेशन होती थी ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होती थी, ये क्षत्रिय बच्चों के लिए भी होती थी। और जब जब गुरु वाज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, तो उनको ब्राह्मण थ्रेड दिया जाता था और ये क्षत्रियों को भी दिया जाता था, ताकि जब भी उनकी लाइफ में कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उनके पास एक रेफरेंस हो, और रेफरेंस क्या है, शास्त्रास। तो कहते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में वो कहते हैं छत्रपति शिवाजी जो है, जो छत्रपति शिवाजी जो थे, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, जो गुरु थे, उनका नाम था रामदास। तो क्षत्रियों में क्या होता है कि जब वो किसी किंगडम को जीत लेते हैं, तो एज अ गुडविल जेस्चर क्या होता है कि वहां की जो लड़की जो होती है उनको वो ब्याही जाती है, जो जिसने जीता होता है। हाँ, सो दिस इज लाइक एन एक्ट ऑफ शिवलरी। तो एक बार क्या होता है कि जो शिवाजी महाराज थे, उनके पास एक कन्या लेके आते हैं कोई जैसे ऑफरिंग करने के लिए, लेकिन उनको पता चलता है कि शी इज मैरिड। तो छत्रपति शिवाजी जो होते हैं, although he was a Kshatriya and Kshatriya are very passionate, तो वो कहते हैं कि this is not right, this is not correct, because she is a mother and because she is married, she is my mother and I cannot accept this. So what does it mean? कि क्षत्रियों की भी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि ना कि तुम्हें सिर्फ धनुर्विद्या और ये सब आती हो, बट यू हैव सम मॉरल वैल्यूज, कुछ प्रिंसिपल्स हो तुम्हारे, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो प्रजा जो है उस पे आप राज करते हो। सो और ये जो राजा जो होते थे, दे वुड ऑलवेज कंसल्ट ब्राह्मणस, हमेशा ब्राह्मणों को कंसल्ट करते थे, एंड दैट्स व्हाई उनको राज ऋषि भी बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पट में कह रहे हैं, अ स्ट्रॉन्ग किंग with all weapons could challenge the agents of Kali. So which means what kind of king, कौन सा king होना चाहिए, who's a very strong king and who can lead the प्रजा peacefully. अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जो राज्य है उसमें शांति हो, पीस हो, समृद्धि हो। तो जो राजा खुद ही स्ट्रांग नहीं है, जो खुद ही पीसफुल नहीं है, वो अपनी प्रजा को कैसे पीसफुल करेगा?
और हम पीसफुल कब होंगे? हम पीसफुल तब होंगे when we are Krishna conscious, when we are happy. We cannot be happy without being peaceful. जो खुद ही खुश नहीं है वो किसी और को कैसे खुश रखेगा? और फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं? And in the absence of such a head, there will always be disruption in the tranquility. अगर हमारा राजा कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, there will always be disruption in the tranquility. Tranquility मतलब peace. उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती रहेगी. कई बार लोग बोलते हैं कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों चाहिए? ठीक है, हम तो खा रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. क्यों चाहिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज? फॉर योर ओन पीस, और हमारी शांति के लिए हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए. हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के वो सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, सब वो अलग चीज है, सब दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट. पहले हम भगवान की सेवा करते हैं खुद को खुशी देने के लिए. जब भी हम कोई भगवान की सेवा करते हैं, किस दिन हमारा सुबह जब खत्म होता है, हम कभी मंदिर जाते हैं, हमें खुशी मिलती है. वी आर वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे. कहते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज किसी ने कोई बैंक में गया और उसने चोरी करी, और चोरी करके वो भाग गया. अब वो जब भाग गया तो पुलिस उसके पीछे आने लगी. जब पुलिस उसके पीछे आने लगी तो हमेशा डर में रहेगा, डरता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे करके चलेगा. अगर उसकी पुलिस सामने से भी निकलेगी तो उसकी हार्ट बीट तेज जाएगी. क्यों? क्योंकि उसने गलती की हुई है. So what does it mean? Because he is not following the laws of the government or the laws of the bank. जब हम सरकार के लॉज नहीं पास करते, नहीं फॉलो करते हैं, तो हम लोग डरते रहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी गिल्टी कॉन्शियस है, हमारे खुद के दिल में डर है. Similarly, when a man or a society suffers when we are not following the laws of the God. आजकल हम जैसे देखते हैं कि it is so common and it is so sad कि इतने divorces हो रहे हैं, इतने extra marital affairs हो रहे हैं. क्यों हो रहा है ये सब? हाँ, because we are not following the laws of the God in the name of women's liberation and women empowerment. Actually, it's just exploitation of the women. Because, you know, I come from a culture जहाँ पे मैंने 4-5 साल I worked in a private sector, and this is 15 years back, and at that time also it was a very sad state of affairs. तो अब I can't even imagine कि अब क्या चल रहा होगा. So there are extramarital affairs, there are divorces. The man suffers, the woman suffers, the kid suffers. Everybody is suffering. And when everybody is suffering, how can they raise up a happy society or a happy kid? They cannot do that. Because why? They're not following the laws of God. अगर चैतन्य चरण प्रभु एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते, कहते कि 1970s क्या हुआ था. I'm little going off the topic, but उस टाइम पे क्या हुआ था, कहते हैं कि वो बता रहे थे कि सिगरेट सेल्स जो थी, एक नई कंपनी आई थी, उन्होंने कंपनी का नाम मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम ना सिगरेट सेल्स बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि they've captured the market, but they've captured only 50% of the market. So what is the other 50% of the market? It is the women. तो उन्होंने क्या किया, यूएस में एक ऐसा निकला कि देयर वाज लाइक अ फैशन परेड, और उसमें सारे टॉप मॉडल्स, मैरिलिन मोनरो और मडोना और ये सब जो थे, इन्होंने वो परेड करी. एंड जस्ट व्हेन द कैमरा वाज फेसिंग देम, so then she comes and she just lights up a cigarette and she smokes it, and then they say like dare to be independent or something like that. तो क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में डाला गया कि ओ यू आर अ वुमन एंड यू आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज यू आर नॉट स्मोकिंग एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग, तो तुम्हारा तो ऑपरेशन हो रहा है. एंड दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड. व्हाट आर द लॉज ऑफ द गॉड? Women stay at home, they take care of the house, they take care of the kids, they read shastras, they tell the shastras to the kids, and that is why you raise, and that is how you raise a very strong family on a very strong foundation, a happy family. But this is not happening. Why? Because you're not following the laws of the God. अभी राधेश्याम प्रभु का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, बहुत सुंदर. तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं इन सिटीज में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं यूएस में या कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में हूँ, क्योंकि द वे द पीपल आर टॉकिंग एंड द वे दे आर ड्रेसिंग अप एंड द हाउसेस, एवरीबॉडी लुक्स वेरी वेस्टर्न. तो वहां पे वो बता रहे थे कि एक बार वो एक जगह पे प्रीचिंग करने गए, तो बैंगलोर में एक कंपाउंड है, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. तो उन्होंने कहा कि इट इज जस्ट लाइक यूएस. तो वहां पे एक जगह पे हस्बैंड वाइफ की बिल्डिंग है, एक जगह पे स्टार्स रहते हैं, केवल पुरुष लोग रहते हैं, और एक तरफ पे सिर्फ गर्ल्स रहती हैं, और एक तरफ पे दे कैन लिव इन टुगेदर. तो कहते चलो लिव इन और वो सब तो छोड़ दो, जो फैमिली वाला जो एरिया था, तो कहते कि उनके जो अपार्टमेंट्स थे वहां पे किचन ही नहीं था.
तो कहते मैंने उनको पूछा कि इसमें किचन कैसे नहीं है, तो हाउ डू दे सर्वाइव? कहते कि नहीं, नीचे मेस है ना। तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं दोनों आईटी में काम करते हैं, तो सुबह तैयार होते हैं, नीचे आते हैं, मेस में खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और जब शाम को आते हैं तो घर नहीं जाते, पहले मेस में जाते हैं, वहां से कुछ पैक करते हैं, खाना खाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। So, अगर आप यू नॉट इवन कुकिंग इन द हाउस, पूजा और वो जलाना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। द लेडी ऑफ द हाउस इज नॉट इन द हाउस, शी इज नॉट इवन कुकिंग। खाना आप खा रहे हो किसी मेस के किसी कुक का, what is your consciousness going to be? It is so sad. Why? Because we are not aligned. हम भगवान के laws के साथ aligned ही नहीं है. Then how can we be at peace? Then Prabhupada says in the purport, the elected show bottle executive head as representative of a degraded public cannot be equal with a strong king like Maharaj Parikshit. The dress or style of royal order does not count if it is one's actions which are counted. तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, the dress does not count, which means just wearing an opulent dress does not matter, that it does not make you a king. Of course, जो राजा जो होते हैं वो रॉयल ड्रेस पहनते हैं, उनके साथ पूरा उनका एंटावराज चलता है, ब्राह्मण चलते हैं, जहां से राजा निकलते हैं वहां पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, वो सब कुछ होता है। हाँ, जैसे महाभारत में देखते ना, जब राजा आता था तो ऐसे अनाउंसमेंट होती थी, ला ला ला, देवों के देव समथिंग पधार रहे हैं, चु 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 लाइक दैट। सो ऑल दैट ऑपुलेंस इज देयर, बट दैट अलोन डज नॉट मेक यू अ किंग। सिर्फ राजा होने के लिए यही एक उपाधि नहीं है। इट इज द एक्शंस, प्रभुपाद सेज, इट इज वंस एक्शंस व्हिच आर काउंटेड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है, ही इज कंडेमिंग डेमोक्रेसी। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज लाइक अ शो बॉटल। A degraded public is electing a degraded person. पब्लिक को क्या बोलते हैं, उनको एक दिन पहले शराब की बोतलें, दारू की बोतलें बांट देते हैं, उनको आगे चलो इनको सिलेक्ट करो। सो डिग्रेडेड पब्लिक एंड डिग्रेडेड रिप्रेजेंटेटिव। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है चाणक्य पंडित का है, वो कहते हैं गुणैर उत्तम तम याति नोचैया आशना संशिता प्रशारस्त शिखरस्तोपि काक किम गरुड़यते। व्हाट डज इट मीन? कहते हैं कि जब कोई विष्णु टेम्पल होता है ना, तो एक विष्णु टेम्पल के ऑपोजिट जो होता है गरुड़ स्तंभ होता है। गरुड़ स्तंभ क्या होता है कि जो गरुड़ जी जो होते हैं वो स्तंभ के ऊपर आएंगे, इट इज लाइक अ लैंडिंग पैड, वो वहां पे लैंड करेंगे और वहां से गरुड़ जी जो हैं वो विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब हर समय अगर गरुड़ जी वहां पे नहीं है तो वहां पे कौवा भी आके बैठ सकता है, लेकिन कहते हैं कि कौवा जो है, जस्ट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द गरुड़ स्तंभ, इट डज नॉट मेक हिम अ गरुड़। वो गरुड़ स्तंभ पे बैठ गया इसका मतलब नहीं है कि वो गरुड़ बन गया। इट इज द एक्शंस दैट, तो वो क्या बोल रहे हैं, गुणैर उत्तमतम याति। गुण क्या है तुम्हारे, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, हाँ क्या तुम्हारे गुण है, व्हाट इज योर क्वालिटी दैट मेक्स यू द किंग और दैट मेक्स यू द गरुड़ा। हाँ, तो तभी हम देखते हैं कि जब महाराज परीक्षित जब उनका जन्म हुआ था, तो उसके बाद जो ब्राह्मण जो थे, एक चैप्टर आता है जिसमें वो ब्राह्मण जो उनकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। वो दयावी होंगे, असुरों का नाश करेंगे, उनकी प्रजा में सब सुखी रहेंगे, इस तरह की वो क्वालिटीज बता रहे हैं, बिकॉज इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स। तो फिर उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं किंग इज नॉट द वन हु बिकम्स किंग बाय पॉपुलर वोट्स। हमें पॉपुलर वोट्स मिल गए किसी को, दैट डजंट मीन दैट ही इज अ क्वालिफाइड किंग। A king has to become a king by his qualities, who is Krishna conscious, जो भगवान का भक्त है और जो अपनी वैल्यूज से जो अपनी प्रजा जो है उसको खुश रख सकता है। एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार एक प्रेसिडेंट था यूएस का, उसका नाम था निक्सन। 70s 60s में वो प्रेसिडेंट था। तो वो निक्सन जो था, उसने स्कैंडल्स किए, बहुत कुछ किए, और पूरा एक प्रजा में जो था एक अप्रोर हो गया कि इसको निकालो यहाँ से, इसको डिथ्रोन करो। बट दैट निक्सन वाज सो अटैच्ड टू हिज सीट कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं जस्ट सी हाउ डिग्रेडेड ही इज, पब्लिक वांट्स टू थ्रो हिम बट ही इज नॉट गोइंग, व्हाट अ रास्कल। एंड ही सेज एंड कंपेयर हिम विद लॉर्ड रामचंद्र, द पब्लिक यूज्ड टू लव हिम। लोग रामचंद्र और सीता को बहुत प्यार करते थे, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, हर समय ऐसे बोलते थे। लेकिन रामचंद्र ने एक धोबी की बात सुनी और इसको उनको लगा कि मुझे क्योंकि अपनी प्रजा को खुश रखना है, और अगर मेरी प्रजा को ये लगेगा कि हमारा राजा ठीक नहीं है तो हम उसको क्यों फॉलो करें, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया।
So Prabhupada says, compare the two people. कि क्या हालत है? What is the kind of representatives we have? और हम बिल क्लिंटन को देखते हैं. What happened with him? The head of the strongest democracy of the world. उनको White House छोड़ना पड़ा in such a shameful state. Why? Because he had an affair with his intern, Monica Lewinsky. It was a very famous case. या आजकल हम देखते हैं ये एलॉन मस्क आजकल बहुत छाया हुआ है. But his personal life is so degraded. So many affairs, so many marriages. The parents are also degraded, the son is also degraded. And these are the kind of people जिनको हम अपना role model बना के बैठे. So we have to be very, very careful. एक बार एक प्रभुपाद जी क्या करते थे अपने शिष्यों के साथ, ऐसे डेविल्स एडवोकेट टाइप बनते थे. मतलब वो क्या करते थे कि प्रभुपाद जी दिखाते थे जैसे कि वो कोई कार्मी है, कोई नॉन डिवोटी है, और जो उनके डिसाइपल्स हैं उनको वो एक तरह से ट्रेन करते थे कि कैसे प्रचार करना है. तो एक बार प्रभुपाद ने अपने शिष्य से पूछा कि व्हाई शुड आई टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्यों आओ मैं कृष्ण भक्ति में? तो डिवोटी कहता है बिकॉज कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड. प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो तुम करो कृष्णा को प्लीज. आई डोंट वांट टू प्लीज कृष्णा, व्हाई शुड आई प्लीज कृष्णा? तो उन्होंने कहा बिकॉज शास्त्र से दैट. इसलिए ठीक है, तो तुम करो, शास्त्र को फॉलो करो. आई एम हैप्पी ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. तो डिवोटी कहता है यू से यू आर हैप्पी बट यू हैव सो मेनी डिजीजेस, यू आर अनहैप्पी. सो प्रभुपाद से हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इफ आई हैव सो मेनी डिजीजेस तो अच्छा है, थोड़ा सुख दुख आते रहना चाहिए, देन वो मुझे सुख की वैल्यू ज्यादा पता चलेगी. फाइनली डिवोटी ने बोला इफ यू डू दैट, इफ यू डोंट फॉलो द शास्त्रास, यू विल गो टू हेल. तो प्रभुपाद से ओ आई डोंट केयर. फिर ये डिवोटी थक गया बहस कर करके, नहीं समझ में आ रहा था और क्या बोलना चाहिए. तो प्रभुपाद ने बोला कि वी हैव टू सर्व गॉड सो दैट वी आर हैप्पी. If we are not serving the God, then we are only not happy. It may be troublesome, it may be a lot of hard work, but at the end of the day, we are happy and satisfied. तभी प्रभुपाद हमेशा ये बोलते थे कि I have made a society for people to be happy. वो सबको बोलते थे आओ हमारे पास रहो, we will give you food, we will give you shelter, and we will give you excellent environment, and you will be always happy. एक बार मुझे याद है मैं पढ़ रही थी कि गिरिराज महाराज जो थे, his father was very wealthy. वो जिस टाउन में रहते थे, जब उनके फादर का बर्थडे होता था उस टाउन में छुट्टी होती थी. तो जब गिरिराज महाराज प्रभुपाद के पास आ गए और वहां पे रहने लगे, तो गिरिराज महाराज फादर केम एंड ही गेव अ ब्लैंक चेक टू प्रभुपाद. उन्होंने बोला कि ब्लैंक चेक लो, इसमें तुम्हें जो अमाउंट डालना है डालो, यू रिटर्न माय सन. तो गिरिराज महाराज जो थे उन्होंने प्रभुपाद के कान में बोला कि ये ब्लैंक चेक भी रख लो और मुझे भी रख लो, डोंट सेंड मी. So then Prabhupada told him that your father is worried, so you go. If you don't like, then you come back. And Prabhupada returned the check. He said, I don't need your money. And then Giriraj Maharaj went, and in 2 months he came back, and then he never went back again. So it may look very austere. यो सुबह उठना है, प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद बनाओ इतने बड़े बर्तनों में और ये सब. But at the end of the day, it keeps us happy, it keeps us satisfied, it keeps us usefully engaged. तो जो नेक्स्ट जो आता है, जो नेक्स्ट श्लोक है, उसमें वो प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं, वो कह रहे थे क्षत्रिय किंग इज कंसिडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड टू गिव प्रोटेक्शन टू द हेल्पलेस एंड chastise the miscreants. In the age of Kali, the poor helpless animals, especially the cows, which are meant to receive all sorts of protection from the administrative heads, are killed without restriction. So the administrative heads under whose noses such things are happening are representatives of God in name only. सिर्फ नाम के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब. तो हमने देखा होगा, हमने एक बड़ी फेमस कॉन्वर्सेशन है बिटवीन प्रभुपाद एंड वन सोशल वर्कर. आई थिंक इज अ सोशल वर्कर, और उनकी प्रभुपाद से एक कॉन्वर्सेशन चल रही है. हाँ, तो उसमें वो जो है, जो मिनिस्टर है, वो प्रभुपाद से पूछते हैं कि वी आर डूइंग सोशल वर्क. तो प्रभुपाद से आपको पता भी है व्हाट इज सोशल वर्क? तो कहते हैं हाँ, आवर पॉलिसी इज टू हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल. जो लोग मुश्किल में हैं, जो ट्रबल में हैं, उनकी हम मदद करते हैं. प्रभुपाद ने बोला एवरीबडी इज इन ट्रबल, इवन यू आर इन ट्रबल, योर मिनिस्टर्स आर इन ट्रबल, बिकॉज यू आर ड्रंकर्ड्स, यू आर मीट ईटर्स, यू आर वुमेन हंटर्स. Then Prabhupada says, basically the king or the representative has to be ideal. He has to be first class. And then Prabhupada says, you find fault with our program. He says, I find no fault.
So Prabhupada says, "ठीक है, if you don't have any fault, then you join us." And then he's like, "I have, there is a different brought up and all." So Prabhupada कहते हैं, "What kind of social work is this that you protect the humans, but the cows and the animals you send in the slaughterhouse? That is not good." और यहाँ पे हम परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे परीक्षित महाराज जो है वो अपनी प्रजा को तो बचाते ही हैं, एट द सेम टाइम जब उन्होंने काऊ और बुल को देखा तो वो काऊ और बुल को जो तंग कर रहा था उसको भी वो मारने के लिए तैयार थे, बिकॉज हर एक, जैसे बोलते हैं ना कि सर्व योनिषु कौन्तेषु, कि मैं हर एक में हूँ। और जब राजा जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में होगा, देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड कि भगवान हर जीव में एज परमात्मा है, एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीवन, द एनिमल्स आल्सो एंड द ह्यूमंस आल्सो एंड एवरीवन एल्स. So Prabhupada says that first of all you have to become peaceful, but we don't know how to do that. Prabhupada said, you try our program, come, sing, chant, dance and eat sumptuous food, you will be happy. Prabhupada said, even if you send a madman to us, he will still be peaceful. We'll give him good food. We will give him a good environment. So this, फिर उन्होंने पूछा, जो सोशल वर्कर था, उन्होंने किसी चाइनीज लीडर का नाम लिया, उन्होंने कहा, what do you think about him? So Prabhupada said, what do I think about him? He's a communist. Communist का क्या होता है? Communist says that everyone has to be happy. But how can everybody be happy? That you don't know. You don't know how to make everyone happy. Then he says, they are taking care of human being in the state, but they are sending poor animal to the slaughterhouse. That is the defect. That is the defect in your whole program. You don't know how to make people happy. You're discriminating. Then Prabhupada says, but minister, what can he do? He has been elected by, so the common social worker tha, he says, but what can he do? He has been elected by the people. So Prabhupada says, yes, that is the problem. He is a rascal, and people who have elected him, they are also rascals. Huh? So, and then Prabhupada says, but then he says, okay, वो ठीक है, लेकिन आपकी जो society है, the percentage of people is very less. बहुत कम लोग हैं आपकी society में. Prabhupada says, the percentage does not matter. Huh? Prabhupada says, there is one moon in the sky, and Prabhupada says, there are so many rascal stars. But what is the need of so many rascal stars? Because there is one moon. So similarly, he says, the percentage of moon is very less, and the percentage of stars is a lot, but the stars are rascal, Prabhupada says. Only one moon is sufficient. So that is why Prabhupada says, to end it up, the whole conversation, Prabhupada says, we need strong leaders in the society, then only everything will fall into place. And by Krishna's mercy, and I don't know, हम लोगों ने क्या अज्ञात सुकृति की थी, by that mercy, we have a very strong leader, Srila Prabhupada, and he was a leader by example. I was hearing a lecture, और उसमें कहते हैं कि जब प्रभुपाद का जब मूवमेंट था, उसके टाइम पे भी there were a lot of fall downs. बहुत सारे लोग मूवमेंट छोड़ के चले गए. They started growing long hair, all of that. They started having problem with the society. इसने ये किया, उसने किया, la 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 la. But when you will ask them, okay, what about Prabhupada? They say, oh, Prabhupada was faultless. We could do anything for Prabhupada. So that is the leader that we have, an ideal leader in Prabhupada. For Prabhupada, people could do anything. And I'll just end up with a small Leela story. So there was one Prabhuji. So he was a sannyasi, and then जो भी fall down या जो भी हुआ, and then he married some Mataji, and फिर वो कहीं किसी यूरोप में कहीं पे रहते थे. जब प्रभुपाद was about to leave his body, तब उनको किसी ने मैसेज दिया कि प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, आपको जाना है उनसे मिलने. तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे जाना है उनसे मिलने. तो उन्होंने वहां पे यूरोप से टिकट लिया. ही केम टू इंडिया. सबसे पहले दिल्ली में आके उन्होंने अपने सारे बाल मुंडवाए, शेव वेव किया. वृंदावन में आकर उन्होंने धोती कुर्ता लिया. So much he did for Prabhupada. Can you imagine कि कोई जिसने छोड़ दिया उस सोसाइटी, he is not following the principles of Krishna consciousness, he is not doing anything. वो पहले इतना एफर्ट लेता है, अपने बाल काटता है, सब कुछ करता है, प्रभुपाद के पास आते हैं. And when Prabhupada is lying on the bed, Prabhupada looks at him and he says, oh, you are here? He says, yes, Prabhupada. He says, how are you? He says, I'm good, Prabhupada. He says, where is your wife? उन्होंने बोला, oh, Prabhupada, I got married.
He said, so where is your wife? You did not get her now? No, Prabhupada, she was not well. He said, that's all right. It's all. So, like that. तो वो कहते हैं कि वो जो डिवोटी जो था वो ऐसे मेल्ट हो गया, मतलब प्रभुपाद को देख के. प्रभुपाद उसने कुछ भी नहीं पूछा कि यू आर सच अ रास्कल, तू कहाँ चला गया था, यू आर अ सन्यासी, व्हाट हैपेंड टू यू, नथिंग. Prabhupada was totally compassionate. And he told him, where were you? No, he didn't ask where were you. He says, where is your wife? He says, Prabhupada, she's not well. And Prabhupada said, it doesn't matter. That's all right. And then he told his other disciples to take care of him. So that was the mercy and the compassionate nature of Prabhupada. हमने कई बार देखा है कि एक आई थिंक हवाई में कहीं पे वो उनके प्रभुपाद के डिसाइपल्स बताते हैं कि एक बार हम बाहर बैठे थे, धूप ले रहे थे, तो एक क्रैब वहां पे चल रहा था. तो एक माता जी ने बोला कि इसको फेंक दें, इसको दूर कर दें. प्रभुपाद ने कहा, नो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड चैंट हरे कृष्णा. एंड उनको लगा हाँ. And then Mataji sat in front of the crab and she was chanting Hare Krishna. So Prabhupada was totally compassionate to his disciples, to animals, to everyone. So totally, मतलब अगर किसी राजा को, एक प्रजा को एक इफेक्टिव हैप्पी किंगडम चाहिए तो उनको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा. और जब भगवान के भक्त बनेंगे, he will be peaceful inside and he will be bold and fearless outside. So on that note, मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा माता जी. जो आज का जो दोनों वर्सेस था वो जो मीनिंग था वो काफी अच्छा था, और आपने काफी अच्छा से जो प्रभुपाद जी का स्टोरी था उससे कनेक्ट करके कैसे एक लीडर को होना चाहिए, एक राजा को होना चाहिए. तो दिस बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि अगर अच्छा लीडर होना है या अच्छा मतलब राजा होना है तो ही नीड्स टू बी ए डिवोटी. तो ही उसमें वो अच्छे गुण आ सकते हैं. इफ नॉट ही कैन नॉट बी. एंड इसके लिए हम लोग प्रे करते हैं कि हम लोग अच्छे भक्त बने. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू दैट. क्योंकि जैसे भागवतम भी बहुत अच्छा एक श्लोक प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं कि जो अच्छा भक्त है उसमें देवताओं के सारे गुण आते हैं. तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी ट्राई टू बिकम ए डिवोटी. एंड वो जो आपने वो गरुड़ वाला जो स्टोरी बताया, दैट वाज रियली वेरी नाइस. जस्ट मतलब गरुड़ के स्तंभ पे कौवा बैठ जाएगा तो ही डजंट बिकम ए गरुड़. So it's just really मतलब very nicely presented the topic. Thank you माता जी. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे माता जी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्लास था. आपने एग्जांपल्स इतने बढ़िया दिए थे कि दे वर एक्चुअली काइंड मतलब एन्चेंटिंग जैसे थे. मतलब आपने वो जो शिवाजी महाराज को जो बताया ना, तो जस्ट एक चीज उस पर ऐड कर रहा था कि शिवाजी महाराज ने ना अष्टप्रधान ये किए थे. जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अगर वो ब्राह्मण का उसने एडवाइस लेंगे तो ही बिकम्स ए बेटर, अब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज अच्छे. तो शिवाजी महाराज ने वो सुन के अष्टप्रधान करके उन्होंने ये लिखे थे. 8 प्रधान थे और 8 के 8 जो थे वो ब्राह्मण थे, who were actually giving advice to शिवाजी महाराज. तो आपने वो जो एग्जाम बहुत बढ़िया लगा. थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. माता जी जैसे अभी समीर प्रभु बोल रहे थे शिवाजी महाराज जी का एग्जाम्पल, तो उनके अगर लाइफ हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक मुस्लिम युवती को लेके आए थे उनके राज्य में, मतलब बता रहे थे, लेकिन वो समझे, उन्होंने बताया कि शी इज लाइक माय मदर. तो दैट जब भी आप राजा का एग्जाम्पल दे रहे थे माता जी, तभी मुझे याद है कि इवन तो नरेंद्र मोदी जी अगर हम लोग देखेंगे उनका लाइफ स्टोरी, उनका जो शौर्य है, उनका हर एक डिसीजन, वो किसी भी बड़े राष्ट्र में जाते हैं तो वो भगवत गीता देते हैं. वो बोलते मेरे को देने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं और आपको लेने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं. तो नरेंद्र मोदी है वो मुझे याद आया माता जी. और थैंक यू, बहुत बढ़िया क्लास था. और जो आपने जो क्लोजिंग जो एग्जाम्पल था शिला प्रभुपाद जी का, वो बहुत बहुत अच्छा था. हम लोग देख सकते कि शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स कितने मर्सीफुल है. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम.
थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे आप वो सिगरेट की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली पत्री प्रभु से मैंने भी सुना था। तो कह हाँ, रहे थे कि नेम ऑफ द सिगरेट इज कूल, और उन्हें बोला कि जब बिजनेस सैचुरेट हुआ तो वो लोग सोच रहे थे अब इसको कैसे जंप स्टार्ट करें वापस। एंड दे सेड देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी कॉल्ड वुमेन, जो क्यों ना उनको भी हुक किया जाए। एंड जैसे आपने कहा बहुत बड़ा परेड वगैरह। एंड वो बोल रहे थे कि नाम कूल है सिगरेट का, दे आर टेकिंग फायर इन द माउथ एंड दे आर सेइंग कूल। सो दिस इज हाउ इग्नोरेंट वी आर। सो super ignorant. It's so sad. It's so sad. Matlab, I see women, and even in my family and friends, I see they are supposedly okay, corporate sector mein they're doing well, but their families are in such bad shape and they're so unhappy. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि the kids are unhappy, the husband is unhappy, the in-laws are unhappy, they themselves are just partying in the night. It's like it's such a sad state of society. I don't know ये बच्चे कैसे raise करेंगे और कैसे इनके बच्चे निकलेंगे. It's just very scary. एंड सेकंड पार्ट माता जी, जैसे आपने कहा ना एक्स्ट्रा मैटर, तो मैं भी जहाँ पे ऑफिस में काम करता हूँ, वे द वीमेन ड्रेस देमसेल्फ एंड दे डिस्कस ऑल द फैमिली प्रॉब्लम विद द मेल कलीग हु आर जस्ट It's very वेटिंग टू sad. एक्सप्लॉइट। तो क्या करते, जस्ट टू शो सम सिंपैथी, एक्चुअली सिंपैथी नहीं, दे जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट। तो क्या करते, दे टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस फैमिली प्रॉब्लम्स एंड दिस लाइक दे गिव देम सम शोल्डर, और देन वो सब ये सब मतलब एंटायर कल्चर इज गोइंग रॉन्ग। Ultimately, it just boils down to one thing. This is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ne bola tha, there is no shortage of anything in the world. There is shortage only of Krishna consciousness. If you have Krishna consciousness, you're aligned to the laws of God, तो आप ऐसी कोई गलती करोगे नहीं, because you're always building boundaries around yourself. But आजकल सबको लगता है there are no boundaries. We are like an independent society. सब कुछ independent. Nobody is independent. It's just an illusion within an illusion. We are already living in an illusion. और उसके अंदर एक और ये illusion है कि हम independent. So it's just ignorance and nothing else. Thank you, Mataji. Thank you so much. We are actually blessed by Prabhupada. नहीं तो we also would have been in the same boat. So we are all Prabhupada and his disciples. All blessed. थोड़े दिन पहले I was just discussing Prabhupada Lilamrit with somebody, and then वो episode आया जहाँ पे प्रभुपाद की wife को प्रभुपाद ने पूछा कि you have to choose between tea or me, and she just sips that tea. तो सब मेरे जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो माता जी देखो कितना प्रभुपाद के साथ खराब हुआ ना, उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट नहीं किया. मैं कहा अच्छा हुआ नहीं सपोर्ट किया, सपोर्ट करते तो प्रभुपाद जी कभी संन्यास लेते ही नहीं और हमें कभी मिलते ही नहीं. तो अच्छा हुआ, दिस वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. So, and one time when somebody asked Prabhupada that, Prabhupada, you've done so much for us, so how can we pay you back? And Prabhupada said, you can never pay me back. You can just become a better devotee and spread the holy name. That's it. We can never pay back Prabhupada. We'll always be indebted. हम हमेशा प्रभुपाद के debt में ही रहेंगे. But we can always just become better devotees and spread the holy name. So that's all we can do. जो लास्ट में जो प्रभुपाद जी का जो आपने पास्ट टाइम बताया, यू कैन सी ही हैड सो मच लव, हैड सो मच अफेक्शन फॉर हिज डिसाइपल्स. तो एक्चुअली फिलोसफी देना, लेक्चर झाड़ना, मतलब हम लोग बहुत कुछ, हम लोग प्रीचिंग कर सकते हैं, वी कैन बिकम गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक प्रीचर, लेकिन if you don't become a good person, if you don't love somebody, especially our close ones, तो we can never be a good preacher. क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारे बच्चे हो या हमारी वाइफ हो, हमारे हस्बैंड हो, वो हमको देख के ही सीखते हैं. हम लोग मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा है डिवोटीज बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत कुछ, दे हैव सो मेनी क्वालिटीज, लेकिन बैक एट होम देयर फैमिली इज नॉट टेकिंग इट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड इट इज बिकॉज दे आर लैकिंग दिस क्वालिटी. मतलब अपने फैमिली को उतना टाइम दे पाते हैं, या उनको उनका जो मतलब बेसिक चीजें जो हैं. तो इफ जस्ट प्रभुपाद जी सबसे पहले ये उनसे यही पूछा कि वेयर इज योर वाइफ. ये नहीं बोला कि तू साला सन्यासी है, तू शादी क्यों किया. द लव एंड अफेक्शन व्हाट ही हैड फॉर हिज डिसाइपल सो मच कि पता है कि ये छोड़ के चला गया है, बट स्टिल जब इतने सालों के बाद आया तो बोला कि वेयर इज योर वाइफ. मतलब सो मच लव एंड अफेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड. और अपना जो भक्ति वृक्षा का जो कंसेप्ट है, उसमें भी यही चीज है माता जी. हम लोग जब कौंते प्रभु काफी साल पहले, 20-25 साल पहले, इट वाज नॉट इवन जीबीसी दैट टाइम, उन्होंने ये कंसेप्ट जो स्प्रेड किया था, उन्होंने यही कहा था
कि प्रीचिंग तुम कर लो, तुम फिलोसफी झाड़ लो, सब लेक्चर बोलो, लेकिन until unless you bond with the group, तुम कभी अच्छा preacher नहीं बन पाओगे. So this is very much required. Love is the basis. So we Yes. need that. एक दिन हमारे नंद किशोर प्रभु बता रहे थे, कहते कि एक बार मैं सार्वभौम प्रभु के साथ जा रहा था, तो सार्वभौम प्रभु ने बोला कि बताओ प्रभु हम अच्छा प्रचार कैसे कर सकते हैं. तो नंद किशोर प्रभु कहते मेरा तो जितना दिमाग था मैंने उस हिसाब से बोल दिया कि प्रभु अच्छा लेक्चर देके प्रसादम चैंटिंग ये वो. तो सार्वभौम प्रभु ने बोला कि हमें अच्छा प्रचार हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनसे दोस्ती करके. नहीं तो लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इधर का इधर से लेक्चर, इधर से उधर से हमारा कोई बड़ी बात नहीं. कहते हमें लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, देन ओनली वी विल बी इफेक्टिव. सो देन ही वाज लाइक, इन्होंने कितनी सिंपल बात बोली और मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, चैंटिंग प्रसादम ये वो. एंड देन सार्वभौम प्रभु से जस्ट मेक फ्रेंड्स, बी फ्रेंडली विद पीपल. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगा कि इट्स सो इंपॉर्टेंट. या इसी बात से मुझे एक याद आया कि जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति वृंद गोविंद महाराज तो हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट इफ यू शुड बिकम फेवरेबल, मतलब जब तुम प्रचार करो या कुछ करो तो एटलीस्ट यू सी दैट पीपल बिकम फेवरेबल, दे डोंट बिकम एंटी. क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं यू रास्कल, तुम लोग मांस खाते हो, तुम लोग ये करते हो वो करते हो, ऐसा मत करो, बिकॉज पीपल रन अवे. और हम लोग दामोदर आरती में जब जाते हैं तो वी डू द सेम थिंग, वी ट्राई टू गिव लव एंड अफेक्शन. और अच्छा तुम भले साईं बाबा कर रहे हो यार, ठीक है एक माला कर लो. तो वी ट्राई टू इंस्पायर देम एंड दिस इज व्हाट टू डू. वी हैव टू, जैसे सार्वभौम प्रभु ने कहा कि वी हैव टू बिकम फ्रेंड्स. एंड जैसे बीबी गोविंद महाराज कहते हैं कि वी हैव टू मेक पीपल फेवरेबल, एटलीस्ट उनको एंटी मत बनाओ उन्हें. सो दिस इज वन थिंग. एंड वही जो प्रभुपाद जी का आपने जो बोला था पास्ट टाइम, इसमें से यही मतलब मुझे पॉइंट स्ट्राइक होता है कि वी नीड टू हैव अ क्लोज लाइक अ फैमिली, दैट knitting should be there. Thank you माता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा. थैंक यू माता. थैंक यू. मुझे थैंक यू ज्यादा बोलना चाहिए आपको. एक तो क्लास के लिए रेडी, ऊपर से इतने बढ़िया क्लास के लिए, तो थैंक यू सो मच माता. एक मैं जस्ट वन वो होता है ना डॉट डॉट. सो मैंने ये जो क्लास है, दिस इज टेकन बाय लेक्चर फ्रॉम अपने राधेश्याम प्रभु एंड Prabhupada conversations I took from the video. So please किसी को ये ना लगे कि वाह क्या एग्जांपल लेके आई माता जी. इट इज ऑल कॉपी पेस्ट फ्रॉम राधेश्याम प्रभु एज इट इज. मुझे कल सुबह तक मुझे नहीं समझ में आया था इसमें मैं लेक्चर में क्या बोलूं. एंड देन आई आस्क्ड माय प्रभु जी, उन्होंने मुझे कुछ जुगाड़ बताया, इस्कॉन डिजायर ट्री पे कुछ कुछ है और वहां पे देखो भागवतम क्लास मिल जाएगी. And then thankfully I got something and then I just copied it. So please, no credit to me. It's all credit to Radhesham Prabhu. He's just amazing. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Matji. Thank you, everyone. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Ji. Hare Krishna. रिटर्न गिफ्ट आपको यही मिल रही है मेरी तरफ से, सबकी तरफ से, कि आप भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े और दूसरों को इसे ही प्रोत्साहन दें. थैंक यू सो मच. आपकी प्रेयर्स बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग भी थोड़ा ठीक रहे और विनम्रता रहे और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े और बच्चा भी आगे बढ़े. बच्चे की अब ज्यादा टेंशन होती है मुझे, he's entering his teenage. So please, सब जगह पे वही है. बड़े छोटों को वही टेंशन रहती है. हम इतना प्रचार करते हैं, फिर पता चला कि कोई हमको सुना ना दे, हमको वही टेंशन रहती है कि अरे इसकी माँ तो बहुत प्रचार की थी, बात तो बहुत प्रचार कर रहा था, लेकिन बच्चे का मतलब इतना टेंशन और डर रहता है. बट कृष्ण की कृपा है कि उनका जो संग है वो भी बहुत अच्छा है माता जी. तो बस भगवान करे हम लोग सब ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहे. थैंक यू सो मच माता. फिर से मैं आपको मिलूंगी 15-20 दिन में. ठीक है. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. वृंद की जय. अगस्त्य रुक्मिणी माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा.